Good morning students, how are you? Hope you all are fit and fine at your home. Students, today we will start a new chapter, chapter number 16, that is water, a precious resource. Students, you know precious means बहुमूल्य, क्योंकि वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है और आपको मालूम है कि रिसोर्स बहुत मतलब टाइम बीइंग आप बनते हैं. वाटर को भी फॉर्मेशन में किस तरीके से प्रोसेस होता है ये आप सब जानते हैं. तो इसीलिए वाटर को, और आपको ये भी मालूम है कि वाटर प्रेशियस रिसोर्स इज़ नॉट फ्रॉम वेस्टिंग इट बट ऑल्सो फ्रॉम द इशू ऑफ कंजम्पशन. मीन्स आप स्नान करने के लिए अगर हम लोग हाफ बकेट में यूज़ कर सकते हैं तो वाई शुड वी गो इनटू द शावर एंड वेस्टेड आवर हाफ एन आवर एंड मोर देन हाफ एन आवर इन द अंडर द वाटर. सो स्टॉप वेस्ट कंज्यूमिंग मोर वाटर, stop polluting the water, and because in the industrial use, after using the water they just throw out, and that garbage mixed with the water resources and then pollution takes place. So saving and keeping the water clean, it is our duty. How much water is available, students? You know that about 71% of the earth's surface is covered with water. Means earth का 71% water से filled है. Still we are saying that we should conserve water, we should protect water, just because कि almost all the water of the earth contains sea and ocean. They are salty, which are not fit for drinking. Okay, most of this water is not fit for human consumption. The water that is fit for use is fresh water. So suppose this is all water on the earth and about 97% water is saline. ठीक है, and out of 100, 97 is saline and only 3% water is fresh water. And this fresh water is covered into आइस कैप्स, ग्लेशियर्स. मीन्स पूरा जो वाटर है वो आइस से फिल्ड है, भरा हुआ है, ग्लेशियर्स है. एंड ग्राउंड वाटर है, मीन्स अंडरग्राउंड में वाटर्स है 30% एंड अदर 0.9%. मीन्स जो सरफेस वाटर है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0.3% ही है. तो इसीलिए इस 0.3% वाटर को वी शुड यूज़ इन ए प्रॉपर मैनर. Now the uses of water can be broadly divided into agricultural purpose, domestic purpose and the industrial use. You know students ki basically we the Indians are dependent on monsoons because of agricultural country, because India is an agricultural country. So about 70% of the water is used for the agriculture purpose. Now 22% is used in the industries. Only 8% water is used as a domestic use, okay, for cooking, for bathing and everything else. Now that you know that there are different states of water. The gaseous form means the water that is present in the air as a humus, humidity के form में जो होता है. Then the liquid present in the ocean, lakes, underground water. Solid form में you know the ice caps, glaciers at the poles. These all are the different states. तो basically water के 3 main states होते हैं: solid states, liquid states and gaseous states. तो वही चीज़ अपन को मालूम होना चाहिए फॉर्म ऑफ वाटर कि वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेन्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय वेरियस प्रोसेस विच मेक द वाटर साइकिल. यू नो that there are 3 states of water. Suppose this is the ice के molecules tightly packed होते हैं. when on heating तो it converts into liquid, melt होते हैं, it changes into liquid and on evaporation convert into the gaseous या water vapor के form में. तो ये पूरी cycle ऐसे ही चलती रहती है. Okay, now the solid states, what are the forms? See the icebergs, snow, these all are glaciers, ice crystals. These all are the solid states of the matter of water. The form of water in the liquid states, it can be in the ocean, as a ocean, dew, river, rain and the fog.
ओके, स्टीम में यानी क्या, इफ़ यू टॉक अबाउट द गैशियस स्टेट्स ऑफ वाटर, स्टीम एंड वाटर, वेपर है, क्लाउड्स है, फॉग है, दीज ऑल आर द gaseous states of water. Now come to the students water cycle. This is the most important cycle of water because the continuous circulation of water in nature is called water cycle. Means water का circulation किस तरीके से हो रहा है, ये cycle throughout the year maintain रहती है और इसी को हम लोग water cycle कहते हैं. What happened? First of all, सन की रेज से वाटर इवोपोरेट होता है. सपोज करो स्नो है, स्नो भी मेल्ट होती है, मेल्ट होकर इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर एंड वाटर इवोपोरेट होता है, इवोपोरेट होके क्लाउड्स बनता है, क्लाउड्स रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन होता है. तो ये पूरी साइकिल इसी तरीके से मूव ऑन होती है. ओके, द वाटर साइकिल यू कैन सी स्टूडेंट्स, दिस इज द वाटर साइकिल. हियर बिकॉज ऑफ द सनलाइट यू नो कि इवोपोरेशन होता है, बिकॉज ऑफ इवोपोरेशन वाटर इवोपोरेट होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट होते हैं एंड दे फॉर्म द क्लाउड्स एंड द क्लाउड्स and the clouds precipitate and rain comes and the water come back. Okay, now the uses of water, you know that the domestic uses of water, drinking, cooking, washing, bathing etc. Public purposes में cleaning the streets, purposes of swimming pools, public fountains वगैरह में भी हम लोग यूज़ करते हैं. industrial purposes, processing and cooling में काम आता है. agriculture purpose for irrigation. ओके, पावर प्रोडक्शन मीन्स हाइड्रो पावर स्टेशंस होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, स्टीम पावर को जनरेट करने में काम में आता है. बिकॉज आफ्टर दिस द कैरिंग ऑफ वेस्ट, जितना भी वेस्ट होता है रोड पे, हाउसेस के अंदर, उन सब को ड्रेनेज के थ्रू बाहर निकालने के लिए वाटर को यूज़ किया जाता है. Now the domestic use, you know the public supply, domestic irrigation, these all are the domestic uses of water. You can read it also. After these, the sources of water. Students, the sources of water, basically the source is rain. Okay, from the rain water fall down in the form of precipitation and the river come and river water जो होता है वो underground में चला जाता है. ओके, नाउ द ड्रिंकिंग वाटर साइकिल, कि किस तरीके से जो भी रेन वाटर होता है, क्योंकि हम मानसून रेन्स पे डिपेंड करते हैं और बेसिकली 1 और 2 मंथ्स की ही रेन होती है, तो वो जो वाटर होता है उसको स्टोर करके रखना, उसको फिल्टर करना, ये सब वाटर साइकिल को फिल्टर करने में काम आता है. तो सोर्स यानी कि एक्वाफायर, लेक से जो भी वाटर आता है वो वाटर सिस्टम में जाता है जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का. लेकिन उससे पहले क्या होता है कि जो डिस्चार्ज होते हैं वहाँ पर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट होता है, पूरा उसको फिल्टर किया जाता है, क्लोरिनेशन करते हैं और फिर इन्फिल्ट्रेशन के सेप्टिक सिस्टम होता है यहाँ पर, जहाँ पर क्लोरिनेशन करके उस वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फिर वो थ्रू आउट द कॉलोनीज़ वो वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है. Now the industrial water use, industries account for 19% of the water used worldwide. Means all over the world में around 19% जो होते इंडस्ट्रीज हैं वो वाटर डिपेंडेंट हैं. ठीक है, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर गुड्स, डिस्पोज ऑफ वेस्ट एंड जनरेट पावर. Around 1000 liter of water is used to produce 1 kilogram of aluminium and 5 lakh liter of water is used to manufacture 1 automobile. तो बेटा आप देख सकते हैं कि एक ऑटोमोबाइल को बनाने में कितना लीटर पानी वाटर यूज़ हो रहा है. ये 1 किलो एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने के लिए कितना लीटर वाटर यूज़ हो रहा है. तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ में वाटर का यूज़ होता है. मोस्ट ऑफ वाटर इज़ यूज टू कूल पावर प्लांट्स, की जो भी पावर प्लांट्स लगे होते हैं उनको क्योंकि वो मशीनें जल्दी पावर कंज्यूम करती हैं तो वो वार्म भी हो जाती हैं, तो बेसिकली कूलेंट के रूप में भी उनको यूज़ किया जाता है. ओके, नाउ द ग्राउंड वाटर, क्योंकि स्टूडेंट्स जो भी रेन के रूप में, प्रेसिपिटेशन के रूप में वाटर ज़मीन पे आता है तो वो स्टोर होता है, तो वो जो वाटर होता है उसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं. तो द ग्राउंड हैज़ अ लार्ज स्टोरेज ऑफ वाटर इनसाइड इट. जो भी ज़मीन है वो एज अ स्टोरेज के रूप में काम आती है. इफ़ वी डिग डीपर एंड डीपर बिलो द अर्थ वी विल रीच द लेवल वेयर द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल एंड गैप्स बिटवीन द रॉक आर फिल्ड विद वाटर. मीन्स अगर हम इसको डग करते हैं, गड्ढा खोदते जाते हैं तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर सॉइल
और रॉक, इनके बीच में वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं कि ग्राउंड वाटर फिलिंग क्रैक्स इनटू द फ्रैक्चर्ड रॉक। यहाँ पे ये सब जगह पे जहाँ पर रॉक्स प्रेजेंट है इनके बीच में वहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है। नाउ द प्रेसिपिटेशन मीन्स द वाटर फॉलिंग इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, मीन्स क्लाउड से जो भी चाहे सॉलिड के स्नो के रूप में चाहे वाटर के रूप में जो वाटर फॉल डाउन होता है उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। यूजेस ऑफ प्रेसिपिटेशन इज रन ऑफ एस्टिमेशन एंड एनालिसिस, ग्राउंड वाटर रिचार्जेस, एनालाइज, वाटर बैलेंस करता है, फ्लड एनालिसिस को डिज़ाइन करने में, इन सब चीज़ों में प्रेसिपिटेशन का डेटा यूज़ में आता है। अपन को डेटा से रिलेटेड नहीं है, जनरली क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन और प्रेसिपिटेशन के बाद जो वाटर होता है उसका यूज़ बताना है। तो देखिए बेटा, ये है हमारा सरफेस वाटर, जो ऑन द सरफेस वाटर इकट्ठे होते हैं, चाहे रिवर के फॉर्म में चाहे लेक पॉन्ड के फॉर्म में, वो क्या कहलाते हैं, सरफेस वाटर। और वो वाटर सरफेसेस जो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं और सेव हो जाते हैं, वो ग्राउंड वाटर कहलाता है। Okay, now the surface water. What is surface water? Surface water is a fresh water on the earth's surface such as creek, streams, river, lake, swamp, pond, reservoirs। ये सब चीज़ें जो on the surface हैं वो सारे एक surface water कहलाते हैं। Now वाटर साइकिल ही है यहाँ पर, बट दिस टाइम हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जब प्रेसिपिटेशन होता है तो इन्फिल्ट्रेशन होता है, ग्राउंड के ऊपर आता है तो वो बहुत सारा जो वाटर होता है वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, फिर पर्कोलेशन होता है, पर्कोलेशन मीन्स छनता जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे नीचे जा रहा है, ये देखो वाटर यहाँ से यहाँ आते जाता है, वो पर्कोलेट होता है, एब्जॉर्ब होता जा रहा है। ठीक है, और ये जाकर नीचे ग्राउंड वाटर में स्टोर हो रहा है। और ये हो गया, कुछ वाटर जो होते हैं सरफेस वाटर वो रन ऑफ होते हैं, यानी बहते बहते जाकर रिवर्स, ओशंस या लेक में मिक्स अप हो जाते हैं। और बहुत सारा वाटर जो होता है वो ग्राउंड वाटर यानी अंडरग्राउंड में सेव हो जाता है, जो हम लोग आगे फ्यूचर में या पूरे थ्रू आउट द ईयर यूज़ करते हैं। ओके, नाउ द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज़ कॉल्ड द ग्राउंड वाटर। जो वाटर के लेवल्स होते हैं उसके अंदर अगर जो अंडरग्राउंड में है उसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड्स सीप थ्रू द सॉइल। सीप मतलब धीरे धीरे रिस के जो ज़मीन के नीचे ज़्यादा का इकट्ठा हो जाता है उसकी बात करें। एंड फिल द एम्प्टी स्पेस एंड क्रैक डीप बिलो द ग्राउंड। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। तो बेटा इन्फिल्ट्रेशन का मतलब याद रख लीजिए कि जो भी वाटर होता है जो ज़मीन के नीचे रिस के मतलब धीरे धीरे बूंद बूंद टपक टपक के इकट्ठा होता है उसको इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर एंड हार्ड रॉक बिलो द वाटर कॉल्ड एक्वेफायर। अब मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे के साइड में जब जाते हैं, मान लो यहाँ पे कहीं रॉक से चट्टान है और पानी की बूंदें जो हैं वो टपक टपक के नीचे इकट्ठी हो रही, तो वो जो वाटर इकट्ठा होगा वो क्या कहलाएगा, एक्वेफायर। ठीक है, यू कैन सी हेयर ये ग्राउंड वाटर सरफेस का वाटर है, यहाँ से अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज हो रहा है। ये देखो अनसैचुरेटेड जोन है और सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जैसे कि सॉइल और इंटरमीडिएट जो जोन होता है जहाँ पे मिट्टी और वाटर सबका कॉम्बिनेशन होता है तो वो अनसैचुरेटेड। लेकिन उसके बाद जब सीपिंग होती है यानी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और इन्फिल्ट्रेशन के बाद जो वाटर इकट्ठा हो रहा है वो चीज़ कहलाती है एक्वीफायर। तो ये इस लेवल पे आने के बाद जो ग्राउंड वाटर होता है वो प्योर फॉर्म में मिलता है। ठीक है, नाउ डेप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। डेप्लीशन का मतलब था कमी, कि अगर इस वाटर टेबल को मीन्स अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर में अगर वाटर की शॉर्टेज हो तो उसको उससे क्या होगा, यानी डेप्लीशन मीन्स कमी। ठीक है, तो वाटर टेबल में गो डाउन इफ वाटर इज़ नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश्ड, कि अगर वाटर की सप्लाई नहीं, जैसे अभी आप समझ लीजिए कि जोधपुर में मतलब ऑल ओवर द इंडिया बेसिकली रेनफॉल हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन जोधपुर में और जोधपुर के आसपास के जो एरियाज़ हैं यहाँ बारिश नहीं हो रही है। तो कंपेयर टू दैट एरिया हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, अभी वाटर की स्केर्सिटी हो रही है, वाटर का डेप्लीशन हो रहा है यानी कमी हो रही है। आज के न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा कि हमारे जोधपुर में अकाल के हालात बन रहे हैं। अकाल यानी देयर इज़ नो वाटर। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम लोग हमारे जो भी रिजर्वायर्स हैं, जो भी सोर्स ऑफ वाटर हैं, उसको केयरफुली हैंडल नहीं करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ है डेप्लीशन, तो हमको इसको रोकना पड़ेगा।
तो आई होप कि अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है वो आपको समझ में आ गई होगी. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी. थैंक यू.